ਹੈਲੋ एवरीवन ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਬਰ ਲੌਜ਼ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਲੌ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਅਸੈਸ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਕਿ ਅਸੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੈਸ with its grammatical variations and cognate expressions means gaining entry into the instructing communicating। ਡਨ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਤੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ? ਇੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿੱਚ। ਡਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੌਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕਲ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੈਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਅਸੈਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਲੌਜੀਕਲ, ਅਰਥਮੈਟਿਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕਲ, ਲੌਜੀਕਲ, ਮੈਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਨ। ਇਹ ਹੈਜ਼ ਅ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1A ਆਫ ਦੀ IT Act 2000। ਡਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨੇ, ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੂੰ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਰੈਸੀ। ਐਡਰੈਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਟੈਂਡਡ ਬਾਏ ਦਾ ਓਰੀਜਨੇਟਰ, ਹੂ ਇਜ਼ ਅਟੈਂਡਡ ਬਾਏ ਦਾ ਓਰੀਜਨੇਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਇਨਕਲੂਡ ਐਨੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਐਡਰੈਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਓਰੀਜਨੇਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਸੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਡਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸੀ। ਡਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪੇ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਕਸਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਵਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਗਨੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੀਨਸ adoption of any methodology, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, adoption of any methodology or procedure ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? by person ਦੁਆਰਾ, for ਕਿਸੇ ਪਰਪਸਲੀ, ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ authenticating an electronic record by means of electronic signature। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਸੈਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਫਿਕਸਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈ ਆ ਮੀਨਸ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੈ ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀ ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਕੀ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰਨ ਹੈ ਇਸ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੀਨਸ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ
और कलैक्शन ऑफ डिवाइसिस। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम च की है ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾइस ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਮੀਨਸ ਆ ਡਿਵਾइस ਜਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਵਾइसिस ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਪੋਰਟ ਡਿਵਾइसिस ਐਂਡ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਿੰਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਜੋ ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ and capable of being used in conjunction with the external files with the contain computer programs, electronic instructions, input data, output data that perform logical, arithmetic, data storage, and retrieval communication, control and other function. Then एक तरह का ये कंप्यूटर सिस्टम है। तो समझ गई होने नॉर्मल लैंग्वेज दसिया होया इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम का की मतलब होंगे। साइबर कैफे की होंगे कहते इसका मतलब एनी फैसिलिटी फ्रॉम दी वेयर कोई फैसिलिटी दी हुई है जितों आप असैस कर सकते हैं कादा इंटरनेट का कौन ऑफर कर रहा है कोई परसन ऑफर कर रहा है इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ द बिजनस किसनों टू द मैंबरस ऑफ द पब्लिक में। समझ गए ना साइबर कैफे की होंगे बहुत एक डेफिनेशन दी हुई है तो याद रखना है जितने तुम जाके इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी परसन द्वारा ही मिलता तो ओके एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। डन उस तो बाद साइबर सिक्योरिटी का मतलब होया कहने इसका मतलब ये होया कि प्रोटैक्ट करना इनफॉर्मेशन इक्विपमेंट डिवाइसिस कंप्यूटर रिसोर्सिस कम्युनिकेशन डिवाइसिस इनफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है। ठीक है, जो स्टोर्ड है तो इसमें प्रोटैक्ट करके रखना किस तो प्रोटैक्ट करके रखना है किसी अनऑथराइज एक्सेस तो यानी कि कोई उसका गलत यूज़ ना कर ले या उसको कोई गलत ऑथराइज ना करवा लवे। ठीक है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी होनी जरूरी है जिस काफ़ी इनफॉर्मेशन होंगी है कोई सेंसिटिव इनफॉर्मेशन भी होंगी है कोई दूजी इनफॉर्मेशन भी होंगी है जिसनों बचा के रखना है किसी अनऑथराइज परसन तो। ठीक है, जो उसका असैस ना लै लवे डन जो उसका यूज़ ना कर लवे। ठीक है, या उन्होंने डिस्कलोज करने की कोशिश ना करे डिसरप्शन करने की कोशिश ना करे डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश ना करे मॉडिफाई करने की कोशिश ना करे इन्होंने सारा चीज़ों तो अपने इसनों प्रोटैक्ट करके रखना उसनों कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, उस तो बाद डाटा का की मतलब होया डाटा मीनस रिप्रजेंटेशन ऑफ इनफॉर्मेशन। डाटा का की मतलब है एक तरह का रिप्रजेंट करता किस फेम या किस फॉर्म में इनफॉर्मेशन के फॉर्म में नॉलेज के फॉर्म में फैक्ट्स के फॉर्म में कंसैप्ट्स के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में which are being prepared or have been prepared in a formalized manner and it's intended to be processed, it's being processed and has been processed in a computer system or a computer network, maybe in any form including computer printouts हो सकते हैं मैग्नेटिक और ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया हो सकता है पंच कार्ड हो सकते हैं पंच टेप हो सकता है और स्टोर्ड इंटरनली इन द मैमरी ऑफ द कंप्यूटर। इनू आप किसी भी चीज़ में जाके स्टोर किया जा सकता है इस डाटा को। ठीक है, किसी भी इनफॉर्मेशन किसी नॉलेज फैक्ट्स कंसैप्ट्स इन चीज़ों कितने भी जो आप स्टोर करिए तो उसको आप डाटा ही कहांगे। ओके, उस तो बाद अगे देखो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का की मतलब होया इसका मतलब ये होया अ पर्सन हू हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू अ इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो परसन होंगे जिसनों एक लाइसेंस मिलिया होया है। ठीक है, कादा लाइसेंस ताकि उस लाइसेंस नाल वो इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर सके। डन जिसनों लोड़ है इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की वो परसन की नाम है इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशू कर सके। समझ गए, जिस परसन को लाइसेंस होएगा वही परसन इशू कर सकता है इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डन हुण उस तो बाद अगे देखो कम्युनिकेशन डिवाइस का की मतलब होया मीनस कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब जिस विच सैलफोन आ जाते हैं जिस विच परसनल डिजिटल असिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ दी बोथ इन्होंने दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है और एनी अदर डिवाइस। ठीक है, कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसनों आप यूज़ कर रहे हैं एक तरीके नाल कम्युनिकेट करने लई कुछ चीज़ सेंड करने लई कोई ट्रांसमिट कोई टैक्सट करने लई कोई वीडियो भेजने लई कोई ऑडियो भेजने लई या कोई इमेज भेजने लई इन्हां चीज़ों आप जे किसी भी डिवाइस द्वारा यूज़ कर रहे हैं जिहदे नाल आप इन सारी चीज़ों भेज सकीए तो उन्होंने ही आप कम्युनिकेशन डिवाइस आखांगे। डन हुण समझ लो अगे कंप्यूटर का की मतलब होंगे मीनस इलैक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ध्यान नाल पढ़िओ इसनूं आप एनी इलैक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल कोई अदर हाई स्पीड डाटा प्रोसैसिंग डिवाइस है डन और सिस्टम विच परफॉर्म करेगा लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल प्रोग्राम परफॉर्म करेगा अर्थमेटिक मेमोरी फंक्शंस परफॉर्म करेगा बाय मैनिपुलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल इम्पल्सेस एंड इंक्लूड ऑल इनपुट आउटपुट स्टोरेज कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज विच आर कनेक्टिंग डाटा टू द कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क जिन्ना चीज़ सारे चीज़ों का जो मिश्रण मिलेगा। ठीक है, एक तरह का या तो कोई इलैक्ट्रॉनिक या कोई मैग्नेटिक या कोई ऑप्टिकल
ਹਾਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਖਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ? कंप्यूटर नेटवर्क का की मतलब होया, इसका मतलब ये होया कि इंटरकनैक्शन है ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स या कंप्यूटर सिस्टम या कम्युनिकेशन डिवाइसिस, तो उसनों आपां कंप्यूटर नैटवर्क आखते हैं। डन। तो इसका यूज़ किस तरीके नाल हो सकता है, जे आप थ्रू कहिए द यूज़ ऑफ सैटेलाइट, माइक्रोवेव, डिजिटल लाइन, वायर, वायरलैस हो सकता है। वायरलैस तरीके नाल इसका कंप्यूटर नैटवर्क का यूज़ हो सकता है। ठीक है, मतलब कि आप कंप्यूटर नैट में यूज़ किवें करांगे, किस तरीके नाल करांगे। सैटेलाइट द्वारा कर सकते हैं, माइक्रोवेव द्वारा कर सकते हैं, डिजिटल लाइन द्वारा कर सकते हैं, वायरस द्वारा कनैक्ट हो सकते हैं, वायरलैस जी चीज़ें उहदे नाल कनैक्ट हो सकती हैं। डन। ओके, उस तो बाद अगे देखिए जी आप ये तुसीं रहण दो। ठीक है, उस तो बाद रिसोर्स में आपको पता लग गया कि कंप्यूटर रिसोर्स की हुंदा है। डन। ये सारी चीज़ों को आप कंप्यूटर रिसोर्स कहने, तुहानूं समझा चुका मैं। ओके, हुण अगे देखो कोई डिजिटल सिग्नेचर समझते हैं आप। डिजिटल सिग्नेचर किनू कहते हैं, हुण तक आपने काफ़ी गल कर ली डिजिटल सिग्नेचर की। इसका मतलब मीनस ऑथेंटिकेशंस ऑफ एनी इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय ए सबसक्राइबर बाय मीनस ऑफ इलैक्ट्रॉनिक मैथड और अ प्रोसीजर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सैक्शन 3। ठीक है, सैक्शन 2 सबसैक्शन 1 ऑफ पी ऑफ द ITI 2000। कहने का भाव यह है कि एक डिजिटल सिग्नेचर है, एक ये डिजिटल सिग्नेचर एक तरह की ऑथेंटिकेट करता है ताकि तुसीं किसी भी ऐसी इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नूं सिक्योर कर सको, यानी कि उसका जोड़ा एक्चुअल च ओनर है वो तुसी हो। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब की होगा कि तुहाडे एक सिग्नेचर है जिहदे नाल कोई इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस की होया पिया, सिक्योर होया पिया। डन। जिहदा सिक्योरिटी तुहाडे हत्थ विच है, जिसकी ऑथेंटिकेशन तुहाडे द्वारा ही हो सकती है, उसनूं आपां डिजिटल सिग्नेचर कहने हैं। डिजिटल सिग्नेचर मतलब एक इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हुंदे ने, तुसीं खुद देखे ही होने। डन। उन्हां सिग्नेचर्स नूं ही जे आपां गल करिए कादे लई यूज़ किया जाता है, किसी इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस नूं सिक्योर करने लई यूज़ किया जाता है। इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म का की मतलब हो गया विद द रैफरेंस टू द इन्फॉर्मेशन, मीनस कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जनरेटेड हुई है, सेंट हुई है, रिसीव हुई है या स्टोर्ड हुई है इन मीडिया विच या मैग्नेटिक च, ऑप्टिकल च, कंप्यूटर सिस्टम च, माइक्रोफिल्म च, एंड कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफाइव च स्माइल डिवाइस विच। ठीक है, इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म का की मतलब हो गया कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन टू रैफरेंस टू एनी इन्फॉर्मेशन, मीनस एनी इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है या सेंट हो रही है या रिसीव हो रही है। ठीक है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है या तो जनरेट कर रहे हैं आप, या सेंट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं किसी भी मीडिया विच, किसी भी मैग्नेटिक विच, किसी भी ऑप्टिकल विच, किसी भी कंप्यूटर मैमरी विच या किसी माइक्रोफिल्म विच। ठीक है, किसी भी इन्फॉर्मेशन या तो आप किसी ऑप्टिकल च पा रहे हैं, कोई मैमरी च पा रहे हैं, कोई फिल्म च पा रहे हैं, माइक्रोफिल्म च पा रहे हैं। डन। तो उन्होंने ही आप एक इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म के नाम से जाने जाएगा। ठीक है, मैं तुहानूं एक सिंपल तरीके समझाना कि इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी कि उसका रैफरेंस किहदे नाल है, इन्फॉर्मेशन नाल है। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी ऐसे डिवाइस विच स्टोर्ड है, या तो वो मैग्नेटिक हो सकती है, या ऑप्टिकल हो सकती है, या कोई कंप्यूटर मैमरी वाली डिवाइस हो सकती है, या किसी माइक्रोफिल्म च हो सकती है, उस इन्फॉर्मेशन को आप इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म आखांगे। डन। इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब हो गया कोई ऐसा डाटा, कोई ऐसा रिकॉर्ड, कोई ऐसा डाटा जो आपने जनरेट किया है। ठीक है, कोई इमेज, कोई साउंड, ठीक है, या कुछ असं रिसीव किया है, सेंट किया है, जो भी इन्होंने चीज़ों आप इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म च रखा हुआ है। ठीक है, वही गल आ गई ना, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने इसनों स्टोर करवाया इन्होंने सारी चीज़ों में। ठीक है, उन्होंने आप इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म कहते सी। तो उसी तरीके नाल कोई भी ऐसा डाटा रिकॉर्ड, डाटा जनरेटेड, इमेज, साउंड, जो भी इन्होंने चीज़ों आपने एक इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म विच या किसी माइक्रोफिल्म विच या किसी कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिक विच रखा हुआ है, उसनूं ही आपां की आखदे हां, इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आखदे हां। उस तो बाद इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसका की मतलब होया कि ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ऑफ एनी इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय ए सबसक्राइबर बाय मीनस ऑफ इलैक्ट्रॉनिक टेक्निक स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल एंड इंक्लूड द डिजिटल सिग्नेचर। डन। उस तो बाद फंक्शन का की मतलब होया कहते इसका रिलेशन किहदे नाल है, कंप्यूटर नाल हो सकता है, जिस विच आपां इहदे फंक्शनस की हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल करने दे हो सकते हैं। ठीक है, अर्थमैटिकल प्रोसैस नूं करने वास्ते हो सकते हैं, कुछ चीज़ डिलीट करनी हो उस फंक्शन का यूज़ होंदा है, उस स्टोरेज करते हैं, कोई रिट्राइवल हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई टैली कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, वो ये सारी चीज़ां जिहड़े परफॉर्म होणगियां। ठीक है, ये सारियां उस कंप्यूटर द्वारा ही होणगियां। ठीक है, जिस विच ये सारे फंक्शनस परफॉर्म किए जाते हैं, उसनूं ही आपां फंक्शन आखदे हां। इन्फॉर्मेशन का की मतलब हो गया जिस विच ये सारी चीज़ां सानूं देखण नूं मिलदियां ने, डाटा, मैसेजेस, टैक्सट, इमेजेस, साउंड, वॉइस, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डाटाबेसिस, माइक्रोफिल्म। ठीक है, इन सारी चीज़ों आप इन्फॉर्मेशन आखते हैं। इंटरमीडिएट का की मतलब हो गया वो समझने की कोशिश करते हैं, कहते विद रिस्पैक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
मीनस एनी परसन ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर परसन, ध्यान नाल पढ़ियो, एनी परसन हू ऑन बिहाफ ऑफ अनदर परसन रिसीव कर रहा है, की रिसीव कर रहा है, कोई स्टोर की हुई चीज़, कोई ट्रांसमिट की हुई चीज़, ठीक है, ट्रांसमिट डेटा रिकॉर्ड, प्रोवाइड एनी सर्विस विद रिस्पैक्ट टू डेटा रिकॉर्ड, इंक्लूडिंग टैलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, नैटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, वैब होस्टिंग प्रोवाइडर हो सकते हैं, सर्च इंजन हो सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स हो सकती हैं, ऑनलाइन एक्शन साइट्स हो सकती हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसिस हो सकती हैं, तो साइबर कैफे हो सकते हैं। ये जिन्ने भी सारे परसन ने ये सारे इंटरमीडिएरी ने जन जो ਤੁਹਾਨੂੰ की कर सकते हैं, दसो की कर सकते हैं, कोई इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं या कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं किसी होर किसी बिहाफ के परसन के उपर ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड है, ठीक है, वो किसी एक परसन कोल या किसी ओनर कोल है, दैन ये विच इंटरमीडिएरी है, ठीक है, जो इंटरमीडिएरी इस बंदे तो की लै लैंदा, हामी लै लैंदा कि हाँ मैं तेरे रिकॉर्ड नूं अगों मतलब कोई एक हैज़ अ सर्विस यूज़ कर सकदा या एज अ सर्विस मैं अगे प्रोवाइड कर सकदा, तो इस नूं एक लाइसेंस मिल जाता है, तो जिहड़ा इंटरमीडिएरी हुंदा अगे सानूं सर्विस प्रोवाइड करदा, और जिहड़ी सर्विस है किसी भी फॉर्म च हो सकती है, ठीक है, टैलीकॉम सर्विसिज प्रोवाइडर के फॉर्म च हो सकती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के फॉर्म में हो सकती है, होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के फॉर्म में हो सकती है, सर्च इंजन के हिसाब से हो सकती है, ऑनलाइन पेमेंट साइट के हिसाब से हो सकती है, जो तुमने कभी देखा होना गेटवे डन, जिहदे नाल तुहानूं काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि तुमने किस डेबिट कार्ड का यूज़ करना है, किस तरह करना है, ठीक है, वो एक तरह का इंटरमीडिएरी है जो तुहानूं फायदा पहुँचाउंदा। उस बाद की पेयर का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है जिस विच सानूं प्राइवेट की एंड दी मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की देखने को मिलती है, विच आर सो रिलेटेड डैट द पब्लिक की करती है, वेरीफाई करती डिजिटल सिग्नेचर नूं जो प्राइवेट की द्वारा क्रिएट हुई होंगी है, डन, तो ओरिजिनेटर का की मतलब होंदा है, मीनस वो परसन हू सेंड कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहा है किसी भी इलैक्ट्रॉनिक मैसेज नूं, ठीक है, एंड कोसिस इलैक्ट्रॉनिक मैसेज टू बी सेंट एंड जनरेटेड डन एंड स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड टू एनी अनदर परसन बट डज नॉट इंक्लूड कोई इंटरमीडिएरी, जिस विच कोई इंटरमीडिएरी देखने को मिल रहा है। की पेयर तो मैं समझाया सी कि एक प्राइवेट की होंगी है, ठीक है, तो ये प्राइवेट की सिक्योर करने लई या उन्होंने वेरीफाई करने लई एक पब्लिक की होंगी है, दैन तो इस विच सीधा ओरिजिनेटर तो सानूं मिलती है, मैं तुहानूं कहा सी इस विच कोई इंटरमीडिएरी नहीं आता, उसनूं उन्होंने उरे दस्सिया होया है, तो उरे जे तुहानूं कदी सिक्योर की पब्लिक की तो इलावा की पेयर भी आ जाए तो भी तुहानूं इसदा आंसर यही टिक करना है, डन, वही गल आ गई, ठीक है। प्राइवेट की मीनस दी की पेयर टू यूज द क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर, प्राइवेट की आप डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक की उसनूं वेरीफाई करवा सकते हैं, डन, तो सैक्शनस में जरूर याद रखना। उस तो बाद सिक्योर सिस्टम का की मतलब होया, मीनस कंप्यूटर हार्डवेयर, सिक्योर सिस्टम मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, डन, एंड प्रोसीजर डेट आर रीजनबली सिक्योर फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस मिसयूज। ध्यान नाल समझने की कोशिश करो, सिक्योर सिस्टम का मतलब होया कोई ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो सानूं सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है, किस तो कोई अनऑथराइज एक्सेस और मिसयूज तो, ठीक है, जो सानूं की नाम है करैक्ट रीजनेबल लेवल और रिलायबिलिटी दे रहे हैं, करैक्ट ऑपरेशंस करवा रहे हैं, ठीक है, तो करैक्ट रीजनेबली सुटेड टू परफॉर्म द इंटेंडेड फंक्शंस, ठीक है, अडहेयर टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, डन, इन्हां चीज़ां सानूं देखण नूं सिक्योर सिस्टम च मिलदा है। हुण उस तो बाद सबसक्राइबर का की मतलब हुंदा, जे आप गल करिए सबसक्राइबर का मतलब हो गया मीनस अ परसन हुज नेम्स ऑफ द इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज इशूड, जिहदे नाम ते साडा इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू हुंदा है, उसनूं ही आपां सबसक्राइबर आखदे हां, डन, डन। सो ये सी अपने जिहड़े इंपोर्टेंट टर्म्स जो आपां ने हुणी समझण दी कोशिश की है, इन्हां नूं हमेशा तुहानूं याद रखना है, इन्हां दे सैक्शन ते इन्हां दी डेफिनेशन तुहानूं कुछ ना कुछ तरीके नाल तुहानूं याद रखनी है, भावें जिस मर्जी तरीके नाल उसनूं लिंक करो, ठीक है, उन्होंने समझने की कोशिश करो, मैं बार बार समझा रहा, डन, तो तुसीं इहनूं समझने की कोशिश करनी है, इत्थे किसी ना किसी तरीके नाल एक क्वेश्चन उरों पूछा जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, तो वध तो वध जे तुहानूं कोई भी प्रॉब्लम आउंदी है, ठीक है, जे इन्हां चों कोई भी क्वेश्चन अराइज होंदा है, ठीक है, तो तुसीं मैनूं गिलसमेंट तौर पर तुहाडा कोल होएगा फोन नंबर होएगा, WhatsApp नंबर होएगा, उससे तुसीं मैनूं मैसेज भेजो तो तुहानूं नाल दी नाल आंसर मिलेगा, भावें तुसीं 24 घंटे कदों मर्जी भेजो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।